तो सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। Chairperson sir, with your permission, on behalf of my colleague, honorable Chairperson sir, on behalf of my senior colleague, Shri Ashwini Vaishwani ji, I lay the papers listed against his name at serial number 3, today's list of the business. Thank you. आइटम नंबर 4, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवाही में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। श्री अजय भट्ट जी। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against the name of my colleague Shripad Yasho Naik ji at serial number 5 in today's revised list of business. 6, प्रोफेसर एच पी सिंह बघेल जी। कार्यसूची में मेरे नाम के आगे लिखित क्रम संख्या 6 पर कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहिए। आइटम नंबर 7, श्री अर्जुन मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Muralidharan ji, I rise to lay the paper listed against his name at serial number 7 in today's list of the business. Thank you. और 8, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Thank you, Chairperson sir. With your permission, on behalf of my colleague Srimati Meenakshi Lekhi, I rise to lay the paper listed against her name at serial number 8 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 9, श्री रामेश्वर तेली जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, श्री अजय भट्ट जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 11, श्री भगवंत खुबा जी। महोदय, आपके अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रमांक संख्या 11 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 12, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी। Honorable Speaker sir, paper lying listed in serial number 12 in Lok Sabha today's business is submitted. Thank you sir. आइटम नंबर 13, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी। Honorable Speaker sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 13 in today's revised list of business. Thank you. 3, डॉक्टर मुंजुपरा महेंद्र भाई। Honorable Speaker sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 14 against my name in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 15, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 6th February 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried over from today's order papers. It contains discussion on the motion of thanks on the President's address. Second, general discussion on Union Budget 2023-24. Thank you. आइटम नंबर 16, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, I rise to move the following motion that this House do agree with the 39th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 2nd February 2023. प्रश्न है कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 2/2/2023 को सभा में प्रस्तुत 39वें प्रतिबंध से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 17, नियम 377 के अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है वो कृपया 377 के अधीन अपने मामले सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।
प्लीज बैठिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कृपया होने दीजिए। ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है, परंपरा भी है। अभिभाषण के पश्चात सबसे पहले धन्यवाद की चर्चा होनी चाहिए। कृपया अपनी सीट पर वापिस जाएं आप, प्लीज। सदन को चलाने में सहयोग करें। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 6 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। तो सोमवार 6 फरवरी के लिए एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के चलते एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सोमवार 6 फरवरी तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है हंगामे के कारण। विपक्ष के शोर शराबे हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार 6 फरवरी तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित की गई है। सोमवार 6 फरवरी तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा में आज फिर चर्चा नहीं हो सकी है। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और शोर शराबे के बीच फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। इससे पहले भी सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया जमकर, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। अब फिर सदन शुरू हुआ था, लेकिन फिर से विपक्ष के हंगामे के चलते, शोर शराबे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। हंगामे के कारण सदन में फिर से चर्चा नहीं हो सकी, बहस नहीं हो सकी, इसलिए लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आज सदन में, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। जमकर विपक्ष ने शोर शराबा किया, हंगामा किया। हालांकि स्पीकर ने अपील की कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलने दी जाए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। स्पीकर द्वारा अपील की गई कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद की जो कार्रवाई होती है, धन्यवाद पर चर्चा हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होने दिया जाए। लेकिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। अडानी और हिंडनबर्ग विवाद को लेकर विपक्ष ने जमकर लोकसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो हंगामे के कारण एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर विपक्ष ने हंगामा किया। अडानी और हिंडनबर्ग विवाद को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, सरकार के सामने सवाल रखे जा रहे थे और आज फिर से सदन में कोई बहस नहीं हो सकी है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 6 फरवरी तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित हो गई है, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही, क्या कुछ अपडेट है?
ये देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप की जो यहाँ पर मांगे की जा रही थी, रिपोर्ट्स को जो है 400 पन्ने की जो रिपोर्ट थी यहाँ पर जो सर्च की गई थी, तो उसी को देखते हुए राज्यसभा में जो कार्रवाई थी लोकसभा को आज स्थगित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो हंगामा था पहले भी से इसको स्थगित कर दिया गया था, आज से शुरुआत की गई थी, लेकिन अब जो फिर दोबारा स्थगित करने के बाद इसको सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से जो हंगामा था उस कार्रवाई को देखते हुए अंदर हंगामा करने लगा था। तो लोकसभा के अंदर तो उसी के साथ साथ जैसे हंगामा काफी तेजी से हुआ था, वहाँ जो स्पीकर है उन्होंने साफ कर दिया कि सोमवार तक के लिए इसे लोकसभा को जो स्थगित कर दिया जाएगा राज्यसभा को। लेकिन उसी के बाद जैसे अडानी ग्रुप और जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग मांग कर रहे थे, जिस तरीके से शेयर में गिरावट आ रही थी, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा कर रहा था, लेकिन उसको जो है स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब सोमवार तक के लिए इसे पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। जी नितिन, हंगामे के चलते फिर से सदन की जो कार्यवाही है स्थगित हो गई है, और किस बात को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था? क्या सवाल वो सरकार के सामने रखना चाहती थी जिसको लेकर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया? क्योंकि स्पीकर द्वारा बार बार अपील की जा रही थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ने जो हंगामा किया उसके चलते एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से स्पीकर ने जो है राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद में यहाँ पर शुरुआत करने की बात की कि राष्ट्रपति के जो अभिवादन है उसे शुरुआत की जाए, लेकिन उसके बाद में विपक्ष जो है पूरी तरीके से हंगामे में अपनी तरीके से उतर आया। लेकिन जब उसके अंदर हंगामा शुरू कर दिया जाता है तो उसी को देखते हुए अडानी ग्रुप और जो है पूरी तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप की जो है गिरावट शेयर बाजारों में गिरावट आ रही है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से हंगामा करते हुए नजर आया राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन स्पीकर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की बात वहाँ कर रहे थे। कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद इसे जो है शुरू किया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने पहले ही जाते नहीं, जिस तरीके से सदन शुरू की गई तो शुरू में ही पहले उन्होंने जो है हंगामा पूरी तरीके से उतारा और हंगामा करते हुए नजर आए। लेकिन उसी के बाद में जैसे ही स्पीकर के सामने उन्होंने कहा, स्पीकर ने जो है सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, और अब क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? क्या कोई सर्वदलीय बैठक हो सकती है? क्योंकि अनाड़ी विवाद को लेकर पिछले 3 दिन से सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, बार बार सदन को स्थगित कर दिया जाता है। क्या अब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाने की कोई उम्मीद है? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सदन को स्थगित किया जा रहा है, अभी कल भी स्थगित किया गया था, आज फिर दोबारा से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सदन अभी थोड़ी देर पहले चला था। तो उसी को देखते हुए जैसे विपक्ष है वो पूरी तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आया, तो हंगामे में उन्होंने साफ जो स्पीकर है उन्होंने साफ कर दिया कि आज जो है इसे स्थगित कर दिया जाएगा, सोमवार तक स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अब सर्वदल जो बैठक है वो भी बुलाई जा सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि जिस तरीके से सर्वदल की बैठक थी उसे बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। तो आज जो सदन है उसे स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अडानी ग्रुप के नाम पर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर जो विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो है यहाँ पर बैठ के बातचीत की जाए, सदन के अंदर चर्चा की जाए। तो उसी को देखते हुए चर्चा जो विपक्ष है पूरी तरीके से हंगामा करते हुए यहाँ पर जो है नजर आया था। जी बिल्कुल, विपक्ष द्वारा लगातार मांग की जा रही है अडानी और हिंडनबर्ग के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी जांच कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जांच हो। तो इसी की मांग को लेकर विपक्ष बार बार सदन में चर्चा चाहता है, और विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इससे भागने की कोशिश कर रही है। सरकार सदन में इसको लेकर चर्चा नहीं करना चाहती है, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है। नितिन, आपको हमारी आवाज मिल रही है? बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। वहीं यूपी एमएलसी चुनाव में सभी 5 सीटों पर शुक्रवार सुबह काउंटिंग पूरी हो गई। इस चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 5 ही सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट, कानपुर उन्नाव स्नातक खंड और झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि कानपुर शिक्षक खंड की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। वहीं सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है। तो यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका है और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। वहीं सीएम योगी ने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विजयी प्रत्याशियों को ट्वीट कर बधाई दी है। समाजवादी पार्टी को यूपी एमएलसी चुनाव में बड़ा झटका लगा है। उच्च सदन में नेता विरोधी दल के पद पर बने रहने के लिए समाजवादी पार्टी को एक सीट की जरूरत थी। फिलहाल उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के पास 9 सीटें हैं
और नेता विरोधी दल के पद पर बने रहने के लिए 10 सीटों की जरूरत होती है और यहां से भी समाजवादी पार्टी चूकती हुई नजर आ रही है। 81 सीटें फिलहाल उच्च सदन में बीजेपी के पास हैं और बीजेपी को एक और बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है और समाजवादी पार्टी का इन 5 सीटों में से एक भी सीट पर खाता तक नहीं खुल सका है। तीस जनवरी को यूपी एमएलसी के चुनाव हुए थे। सभी 5 सीटों पर कल काउंटिंग पूरी हो गई थी। नतीजे घोषित किए गए शाम को, जिसमें से 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो यूपी एमएलसी चुनाव में सभी 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी है। 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, वहीं समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है और समाजवादी पार्टी जो चाहती थी कि उसे कम से कम 1 सीट मिल जाए ताकि जो विधान परिषद में उसकी दावेदारी है नेता प्रतिपक्ष की, वो दावेदारी पुख्ता हो सके। लेकिन चूंकि 10 सीटें कम से कम चाहिए होती हैं लोक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक पार्टी के पास, तो ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी के पास केवल 9 सीटें ही रह गई हैं और अभी उसे लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। एक बार फिर वो वंचित रह गई है नेता प्रतिपक्ष की सीट से। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है उसके लिए बड़ा सेटबैक है, जहां वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो तमाम किसी जो अपने पार्टी की मौजूदगी दर्ज करा सकती थी, समाजवादी पार्टी उससे वंचित रह गई। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर यह फायदे का सौदा रहा है, फायदे का चुनाव रहा है। और फायदे का चुनाव इस वजह से भी रहा है क्योंकि पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार इन 5 सीटों में 4थी सीट भी इनको हासिल हो गई है। एक जो सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिली है, यह शिक्षक स्नातक का चुनाव था जिसमें राज बहादुर सिंह चंदेल को, शिक्षक जो कानपुर परिषद में आता है, तो उन्होंने अपना निर्दलीय होते हुए भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी है। तो ये एक बड़ी चीज है, एक जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान है। शिक्षक आंदोलन और शिक्षक नेतृत्व को लेकर वो पिछले कई बार से एमएलसी बनते रहे हैं, तो 3 बार से शायद एमएलसी हैं और उसके बाद अब इस बार एक बार फिर उनको ये मौका मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी जो पहचान, अपनी जो साख है वो कायम रखी है और सिर्फ साख कायम नहीं रखी है, उन्होंने ये भी बताया है कि किसी भी लहर में, किसी भी आंधी में जो मजबूत दरख्त होते हैं, जो लचीले दरख्त होते हैं, वो रुक जाते हैं, वो बच जाते हैं, अपना अस्तित्व बचा लेते हैं। तो उन्होंने न सिर्फ अपना अस्तित्व बचाया बल्कि एक बार बड़ी पुख्तगी के साथ अपनी मौजूदगी अब वो दर्ज कराएंगे शिक्षक नेता के तौर पर, शिक्षक एमएलसी के तौर पर। तो ये पूरा आंकड़ा अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए सेटबैक है। 2024 के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी को उम्मीद से भरने वाला है, बीजेपी की ताकत बढ़ती हुई ताकत का एहसास कराने वाला है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये थोड़ा मुश्किल दौर का भी एक तरीके से मुजाहिरा है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का ये चुनाव था और इसमें भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगे अब अपनी रणनीति और मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड इन जानकारी के लिए आपका। वहीं इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने इस सीट पर 1403 वोटों से जीत हासिल की। बाबूलाल तिवारी को कुल 10,205 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर सुरेश त्रिपाठी रहे जिनको 8,802 वोट मिले। वहीं तीसरा स्थान सुरेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने हासिल किया। इस जीत का श्रेय बाबूलाल तिवारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया है। तो झांसी इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने 1403 वोटों से जीत हासिल की है और बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को दिया है। वहीं दूसरे स्थान पर सुरेश त्रिपाठी रहे जिनको 8,802 वोट मिले। तीसरा स्थान सुरेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने हासिल किया।
इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अतुल वर्मा हमारे साथ झांसी से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल तिवारी, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब शिक्षक एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी ने भाग लिया है। जी, यह पहली बार चुनाव में तो भाजपा के लिए भी एक चैलेंज था। उन्होंने जमीनी स्तर पर तैयारी की, क्योंकि शिक्षक एमएलसी का चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। जी, कई जिले जिनमें होते हैं तो बहुत आसान नहीं होता है चुनाव लड़ना, लेकिन भाजपा की फील्ड पहले से ही तैयार थी और पहली बार चुनाव भाजपा लड़ रही थी, तो उनके लिए चुनाव जीतना एक प्रेस्टीज की बात थी। जी, और उस पर सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर काम किया और एक भारी बहुमत से जीत हासिल की। जी, तो बाबूलाल तिवारी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। करीब 10,205 वोट उनको हासिल हुए हैं। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। किस तरीके का माहौल वहां पर देखा जा रहा है उनकी जीत के बाद? देखिए, पहली बार एमएलसी, शिक्षक एमएलसी में जीत हुई है तो माहौल तो खुशी का है। यहाँ पर सांसद, विधायक, मेयर और अब एमएलसी और दूसरे एमएलसी सारे भाजपा के हैं, तो भाजपा का माहौल अच्छा बना हुआ है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि सारी सीटें इस समय भाजपा के पास है। जी, और कार्यकर्ता वगैरह काफी खुश है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को एमएलसी चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। 5 में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई है। झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे उनको कितने वोट मिले, उनको कितने वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा? उनको लगभग 4,500 वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि शिक्षक एमएलसी चुनाव में पहली बार सपा भी शामिल हुई थी, तो उनकी फील्ड उतनी तैयार नहीं थी। प्रशासनिक मशीनरी और कार्यक्षेत्र जो होते हैं जहां विधायक, सांसद हैं, तो फायदा मिलता है शिक्षक एमएलसी में, लेकिन सपा को इस प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला। और प्रत्याशी जो थे वो भी बहुत नए थे। अतुल, मतगणना के दौरान धांधली के भी आरोप लगाए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। ऐसी कुछ स्थिति झांसी में भी देखने को मिली थी? देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव था और जब काउंटिंग हो रही थी तो सारी पार्टियों के कार्यकर्ता अंदर मौजूद थे। जब तक काउंटिंग होती रही तब तक अंदर से कोई ऐसी सूचना नहीं आई थी जहां धांधली का आरोप लगाया गया हो, लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद धांधली के आरोप लगाए गए। प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत थी, तो इस बात को हम नकार सकते हैं एक तरीके से कि कुछ धांधली हुई हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस अपडेट के लिए आपका। वहीं बरेली में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी जयपाल सिंह ने जीत हासिल की। उनको कुल 66,179 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर शिव प्रताप सिंह यादव रहे, जिनको 14,982 वोट मिले हैं। तो बरेली में एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ी जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयपाल सिंह उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की है। बरेली एमएलसी चुनाव में उनको करीब 66,179 वोट हासिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 7 साल के बच्चे ने मोबाइल पर गेम खेलने के बाद फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पूरा मामला हमीरपुर के मौदाहा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर 7 साल के बच्चे ने गेम खेलने के बाद फांसी लगा ली। बताया जा रहा है मोबाइल पर वो पॉप गेम खेल रहा था और गेम खेलने के बाद उसने फांसी लगा दी है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस की आखिर क्यों एक 7 साल के बच्चे ने इतना भयावह कदम उठाया है। और बताया जा रहा है कि मोबाइल पर गेम खेलने के बाद उसने अचानक फांसी लगा ली है। मोबाइल पर वो पॉप गेम खेल रहा था। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।